Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, so today we are going to continue with our textual exercise, right? And then Yes, ma'am. with that new chapter, let's see. Take your time, better take 2 minutes. Whatever water or whatever you want to complete that, okay? And be ready with your textbook then. And please keep your videos on, okay? After that, Ma'am, which page number? yes, beta. Which page number? Storm and cyclone, page number 92. मैम 1 मिनट वेट करो ना, मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ. Okay. मैम टेक्सचुअल एक्सरसाइज के बाद Textual प्लांट्स लेने वाले हो. exercise के बाद we will think about it कि हम क्या लेंगे, okay? ओके मैम. Okay, ready, beta, all of you? All of you there, beta? Yes, ready. Yes, We are ma'am. ready. You're on, beta, okay? So that I can see only 2 or 3 videos are on. I'm not able to see you, beta. What you are doing, I have no idea. Okay, if your videos are off, what you are doing, I have no idea, beta. Are you getting it? Yes, ma'am. Okay, so if you're Yes, done, ma'am. Getting. if you're done, let me know. Mute yourself, beta. मैम आपकी आवाज ना थोड़ी क्रैक होके आ रही है. No, ma'am. अच्छे से आ रही है. Ma'am, it is मेरा clear. नेटवर्क प्रॉब्लम है. Okay, okay, fine. Okay, so after this, we are having only physics, chemistry only pending, right? We are having only one chapter we can say, or 2 chapters are there from, I think 3 chapters are there from biology, okay? हम बाकी सब कंप्लीट हो गया. Respiration. So let's see, reproduction in plants, I think we will Yes, not ma'am, वो take चालू कर reproduction दो. in plant because किसी भी स्कूल में reproduction वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, right? मैम हमारा अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा. अगस्त से reproduction वाला स्टार्ट होगा बेटा. हाँ Yes, ma'am. In my school also. और मैम soil तो ये कौन सा मंथ चल रहा है? Soil is started. okay, हमारा सॉइल खत्म भी Soil- हो गया और उसकी एग्जाम भी होगी. एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ कि सॉइल ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में सॉइल वाला कंसिडर होगा पहले. सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है कि रिप्रोडक्शन वाला कंसिडर हो, ठीक है? तो हम सॉइल चल रहा है. सॉरी बेटा, मैम हमारे स्कूल में लाइन वाइज चल रहा है. पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे मैम. अच्छा है, मैम सही मेरी है, स्कूल सही। में ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए. लाइन में जाना चाहिए वैसा. हाँ. हमारे स्कूल में सबसे पहले 1 3 बाद में 1 2 4 बाद में 3 हुआ. हमारे स्कूल में 1 2 3 पे चलता है, बाद में आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं. ओके फाइन, चलो फाइन. मैम ऐसा अलग अलग क्यों करते हैं स्कूल वाले? वो चैप्टर मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है? हर दोनों सेमेस्टर में वो मेंटेन होना चाहिए. फिर ऐसा ना हो कि एक सेमेस्टर में पूरा बायोलॉजी से भरा है और दूसरे सेमेस्टर में पूरा केमिस्ट्री या ऐसे, ठीक है? चलो, fill in the blanks first. Wind is what?
Wind is blank air. Simple. So simple. Moving air. moving. Correct. Moving air. Very good, beta. Who was that? Mitwa. मैम वो भी यही बोलने वाला था. Okay. Hand That raised. winds are generated due to dash Uneven hitting. correct. Uneven Very good. hitting. Uneven hitting of the earth. Right. So if they are going to ask you, okay, not for exam, if someone will ask you that if you are a science student, right, tell me that why wind is generating. Okay, what's the reason behind it? So what you are going to say? Uneven heating of the Earth. earth, right? Earth. Uneven heating means how we can say that it's uneven heating? मैम जैसे नॉर्थ में ठंडी ज्यादा होती है और साउथ में कम होती है. Correct. Right. Great. Then next question. Yes, beta. Dhara, unmute yourself. Yes, ma'am. Warm and cold. First of all, read that question first. Near the Earth's surface, dash air rises up wherever dash air comes down. Okay. Warm and cold. Yes, you know that if it's a warm air, then it's going to rise up. If it's cool air, it's going to settle down. Perfect. Then next question, Mitwa. Yes, ma'am. Near the Earth's surface, ma'am, question C na. Fourth, beta, fourth. Okay, ma'am. Air moves from a region of high pressure to a region of a low pressure. Perfect. Very good. Second one. Yes, beta. Dia. Suggest two methods to find out wind direction at a given place. Ma'am, first by wind vane and second by the movement of dry leaves falling. Dry leaves falling. Yes, right, correct. Definitely. Okay, what is that, method, or you can prepare one paper craft out of which we can decide this direction of wind. मैम Normal पर जो paper craft. पेपर से बनेगा ना वो सिर्फ राइट और लेफ्ट ही फाइंड कर पाएगा. But if we are preparing if we are preparing two, okay, and one of them we are going to arrange in one direction and one of them we are going to arrange in another direction. Or if you have to prepare an anemometer, what is that easiest method? Then can I? Yes, beta, Ansh. Then first we have to take a paper and cardboard. Then we have to hold it into stick. मैम मैं कहूँ Yes. मैम दो एक जैसी स्टिक लेने की और उसको बीच में से ज्वाइंट करने का और चारों तरफ कप लगा देने के Very good. और Okay, नीचे now भी एक it is. स्टिक. परफेक्ट. यानी डिस्पोजेबल जो हमारे लाइट वेटेड मग होते हैं, राइट, जो ग्लासेस होते हैं या फिर जो डिस्पोजेबल हम कहीं पे बाहर किसी ओकेशन पे जाते हैं तो वो छोटे से या टी के जो डिस्पोजेबल मग होते हैं, राइट, इसको एक डायरेक्शन में ऐसे लगा दो, राइट, स्टिक कर लो, स्ट्रॉ के ऊपर स्टिक कर लो. स्ट्रॉ एक बेस्ट वर्जन है क्योंकि लाइट वेट रहे है वो भी, राइट, और इस वाले आपके स्ट्रॉ को किसी एक और स्टिक पे लगा दो और उसको लगा दो जहां पे हवा बह रही है, राइट, तो क्या होगा? इट्स गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दैट विंड. सिंपल. कैन वी से दैट? It is on page. यस Ma'am, it is on page number 93. Anemometer. Yes, beta. That activity is already there. We have seen that easily how we can prepare anemometer. So anemometer is the easiest way to prepare. Okay, you can prepare at home. This is one of that example. You can use some other materials as well, right? Then next question. Okay. Yes, next question, Ansh. Yes, ma'am, I am reading the question. State two experiments that made you think that air expert pressure. Here exerts pressure. Ma'am, I don't know that. I know of textbook. Can I tell? Sorry? Ma'am, in this it is written that are not from textbook, but I only know from textbook. Okay, okay. Just give that answer, beta. Ma'am, one is that first we have to take an empty bottle and put a paper ball on the cap. Okay, wait, Ansh. See, this one, third question, for third question. Dhara, yes, wait, unmute yourself, Dhara. Ansh, wait, okay. State two experiences, or you can say experiments
that made you think that air exerts pressure? Means air is going to apply some pressure on any object. ये प्रूव करने के लिए हमें कोई भी दो एक्सपीरियंसेस, आपके खुद के दो एक्सपीरियंसेस आपको बताने हैं, अदर देन दोज गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक के अलावा दो बताने हैं जहां पे आपको लगता है कि एयर भी प्रेशर क्रिएट करती है किसी चीज पे. ठीक है, दारा आप बताओ बेटा एक एग्जांपल. Yes, ma'am. Ma'am, when the wind causes curtains, doors, and windows to move with the direction with the wind of the wind, ma'am, this is called air exert pressures. Air exert pressures. Okay, we have seen one example. Yes, beta. Yes, Mitwa, try. Good try, beta. Dhara. Ma'am, cycling against the direction of wind, it exerts air pressure. Very good. It shows that air pressure because you are going to move in that opposite direction of wind is blowing, right? Yes, perfect example, beta. Then who will tell me another example? There are not only two examples available, right, beta? More than that you are having. एक वाली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो ना. Vanit. Yes, beta. Anyone? Can I? Can I? Ansh? Yes, beta. Turn by turn. Ma'am, when we are pedaling the cycle, we are pedaling forward, but the wheels are, when we see it, the wheels are moving backward. Wheels are moving backward. And due to the air, Wheels are moving backward, beta. ma'am, we are going forward, but the wheels are, when we see it is moving like this. हाँ, तो Wheels or pedals. beta, pedal fine, okay, but what is it? Wheels are not moving in backward direction. Continuous is going to move in which direction, beta? मैम फॉरवर्ड ही जाएंगे. हाँ, जैसे आपका एग्जांपल बताओ बेटा. Yes, ma'am. Take a long cloth and go to terrace when there is a air. So then we will find the cloth is moving in backward against the air, Okay, fine. Okay, good. not against Yes, I in the got way it. of air. Direction. Okay. Now next one. If you want to buy a house, would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer. Now this is important. Okay. And this answer who is going to give me? Just give me a moment. Vedant, Ayush, Devansh. We are having two Vedants. Khushi, Neev, Rutva. Beta, all the time Shlok, you're putting the top. Beta, why? Dwanit, Dhyana, Aman, your video should be on, and please actively participate whatever we are discussing. If you are going to do that at the time of exam, it will be not a burden or a load, right, for you. Please do it. Okay, who will give me this answer, beta? Yes, Mitwa. Ma'am, which one? If you are having suppose consider if you want to buy a house, okay, so what will happen? Would you like to buy a house with windows and no ventilators? Ma'am, I have to, ma'am, मुझे थोड़ा time दो ना. Okay, Diya. मैम मीन्स वो वाला है ना कि नीचे से ऊपर टेरेस तक एक खाली होल जैसा होता है, मतलब Ventilator means you will find out right now. Suppose if we take example of kitchen or Diya, what about you, beta? Diya? Yes, ma'am. No, I would not like to buy a house that has window but no ventilators because ventilators keep way to keep warm air outside the house or room, and ventilator also keep us to survive high speed wind. Yes, right. Without windows, we are not going to purchase any home, right? Not only windows but ventilators. Ventilators are those things. Upper side of your wall, you'll find out one structure will be there which is consisting of holes. Okay, so what will happen? Your home is going to ventilate that air. It's going to exchange the air from outside. Okay, so it's going to just provide that cross ventilation. What is cross or ventilation means what? Fresh air will enter inside your home, and then whatever air is moving right now inside is going to outside. Okay, why it's मेरे घर पे otherwise what है. will happen? Ma'am, in kitchen, the heat is coming. Yes, but that we are having what, beta?
What is that? It is what? That is not Changing- actual Not natural. exhaust fan. Yeah, that fan, it's not natural. We are just switching on that mechanical work so that it's going to do that. But naturally, if we are going to keep one tile like size, which is consisting of holes, so these holes are going to naturally ventilate the air. Okay, before it was there, right now that pattern is completely different, and we have replaced all of them with that exhaust fan. Okay, next Ma'am, question. Yes, बाथरूम में होता है. yes, exactly. Hota hai, right? Windows and ventilators are different. See, you know that what is window, normal term, right? Ventilators are smaller in size, and you'll find out if this is your wall. So upper side of the wall, okay, where we cannot easily reach, there you'll find out this ventilation. This ventilation is consisting of, suppose sometimes it's in form of only holes. These dots are nothing but holes. Okay, these holes, they are not larger in size. These holes are going to cross ventilate, or they are going to provide that fresh air from the outside, right? Or it will be something like this. Some patterns are available, but right now, nowadays, we are not keeping such type of ventilators. We are keeping those exhaust fans, right? And there you'll find out a small net or mesh like structure or jali, right? This is what we are saying ventilator. अब आप वॉशरूम एरिया की बात कर रहे हो, तो वॉशरूम एरिया में you'll find out, one second बेटा, वॉशरूम एरिया में you'll find out कि एक छोटी सी विंडो होती है और वहां पे ग्लासेस होते हैं, तो एक टिल्टेड पोजीशन में होते हैं, ठीक है, आउटसाइड होते हैं वो. विंडो ही है, बट वहां पे क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट प्राइवेसी मेंटेन हो, राइट? तो ऐसे होता है, बट हाँ, वो दोनों का काम करेगा. अगर विंडो है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क एज व्हाट बेटा? वेंटिलेशन. इसलिए जब भी नया घर खरीदेंगे तो हम यही देखेंगे कि अगर कोई फ्लैट में है ना, सबसे ज्यादा वहीं पे दिक्कत होती है, तो कहीं से ना कहीं से हमारे घर में वो सनलाइट आनी चाहिए या बाहर से फ्रेश एयर आनी चाहिए, राइट? दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. फाइन. हाँ बिजबा, बोलो बेटा. मैम वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट दोनों सेम होते हैं? मैंने अभी बताया कि तीनों अलग होते हैं, विंडो, वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन. हाँ, बट आपका जो एग्जॉस्ट फैन है वो वेंटिलेटर की तरह ही काम करेगा. वेंटिलेटर अलग क्यों है? क्योंकि वहां पे मैकेनिकल कोई काम नहीं होता. हमने दीवार के अंदर थोड़े से होल्स बना दिए, क्यों? ताकि बाहर की हवा अंदर आए और अंदर की बाहर जाए. और एग्जॉस्ट फैन क्या है? वो एक टाइप का मैकेनिकल फैन ही हमने लगाया है, जो उल्टा होता है. उल्टा यानी क्या करेगा? हमारे घर की हवा को बाहर फेंकेगा, जैसे एसी में होता है ना? ओके ध्यान, आई गॉट इट बेटा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आएगा रुतवा. यस रुतवा. मैं कह रहा था कि होल्स वाला नहीं है पर मैकेनिकल है. क्या मैकेनिकल बेटा? आप दिखा रहे हो क्या? नो, बस कह रहा हूँ. ओके. हेलो. यस बेटा रुतवा. यस मैम. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. Holes in the banners and hoardings help air to pass through it. Okay. Hence, banner can withstand the pressure of the air and remain intact. Pressure. Okay. Who will tell me? If Ma'am, you want, can I say? else beta. Yes. If you want to Ma'am, add. Holes are made in hanging banners and holding to allow air to pass through them, as a result of which there will be a less pressure of air. Only pressure, or this question is related to something else? I do not understand question. मैम Okay. होल्स नहीं होंगे तो वो पूरा नीचे गिर जाएगा. Correct. This may be appropriate to destroy due to the pressure of the air. यस बेटा. ओके, आई विल एक्सप्लेन. अंश, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बैनर्स यानी क्या? जो बड़े बड़े से बेटा पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगते हैं, आपको पता होगा, राइट? मैम इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा होते हैं. तो सीधा किसी आयरन के स्टैंड पे, अगर बड़े बड़े स्टैंड पे नहीं लगाया तो चांसेस है, अगर ये स्टैंड नहीं है, समझ लो हमने सीधा कहीं पे थ्रेड से लटका दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? चांसेस है कि वो हवा से हमेशा घूमता रहेगा. तो इसलिए उसके नीचे कोई सॉलिड सा ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, ठीक है. पहली बात ये हो गई, क्यों? ताकि वो वहीं पे रहे.
ना कि वो हर टाइम विंड के साथ मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। सेकेंड, वहां पे एक छोटा सा होल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है बट होल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर भी एयर तो काम करेगी। अगर आप स्टोन लगा दोगे तो वो ऊपर नहीं उठेगा बट फिर भी एयर काम करेगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर हॉल्स हो गए, है ना, जैसे हमने वेंटिलेटर की भी बात की, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये वाला और प्रेशर, ये दोनों चीजें यहाँ पे काम करेगी। यानी क्या, ये हॉल में से भी एयर पास होगी मेंटेन करने के लिए। ये कुछ ऐसा है, आपने देखा होगा कि कई बार जो कुकर, प्रेशर कुकर होते हैं, उसके ऊपर हम लीड लगाते हैं, वहां पे एक छोटा सा हॉल भी होता है। या फिर हमारा कोई एक पैन है ग्लास का, अगर लीड है हमारे पास, उसके ऊपर छोटा सा एक हॉल भी होता है। क्यों? ताकि आप सडनली जब लीड को ओपन करो तो वो प्रेशर की वजह से पूरा अचानक से वहां से पॉपअप ना हो। इसलिए ये छोटा सा होल इसलिए होता है कि धीरे धीरे करके यहाँ से एयर निकलती रहेगी। तो जब आप अचानक से उसको ओपन कर रहे हो देखने के लिए कि अंदर सब्जी प्रिपेयर्ड है या नहीं, तो उस टाइम पे अचानक से वो सारी जो वेपर है वो आपके मुंह में नहीं आएगी। या फिर अगर प्रेशर कुकर है तो अचानक से उसका लीड, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा उछल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उससे कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, राइट। तो ये छोटे से हॉल रखने का मतलब वहां पे यही है। सेम थिंग यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ये होर्डिंग्स होते हैं बहुत लाइट वेटेड चीजों से बने होते हैं, है ना, प्लास्टिक का कोई फाइबर, ऐसी चीजों से बना हुआ होता है, फाइन। इसलिए उसको कोई हैवी चीज के साथ रखा जाता है। पर समझ लो कि कोई हैवी चीज के साथ नहीं रखा है, सीधा किसी थ्रेड से उसको बांध दिया है, तो वहां पे नॉर्मल छोटे से हॉल्स होंगे ही, ताकि वो एयर की साथ ही हमेशा, अगर वो बेहतर रहेगा तो हम वो होर्डिंग्स और बैनर को देख पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये होल से अगर एयर पास हो जाएगी तो जितना ज्यादा प्रेशर इस होर्डिंग या बैनर के ऊपर लगने वाला था उसको हम थोड़ी मात्रा में कम कर देंगे, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर लगी जो भी एड है उसको भी देख पाए। अगर ये वाला बेटा रिलेट करोगे यहाँ पे तो वो समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, वार्म वेपर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एयर जो मूव करती रहती है, क्योंकि हम खुली हवा में बैनर्स को लगाने वाले या होर्डिंग्स को, राइट। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर उसके बेस पे काम, क्योंकि वो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा। अगर एक साथ में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो हो सकता है कि बैनर फट भी जाए अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो। इसलिए हम धीरे धीरे, हम क्या कर रहे हैं उसको रिलीज, जब भी प्रेशर कुकर आपके मदर ओपन करते हैं तो वो धीरे धीरे से पहले उसके ऊपर की विसल के थ्रू उसकी एयर रिलीज करवा लेते हैं, है ना, ताकि क्या होगा, अचानक से आप खोलोगे तो पहले तो वो लीड ओपन भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि वहां पे एयर ऑलरेडी आपने जनरेट करके रखी है, तो ये पूरा टाइट लीक होके रखा है यहाँ पे वैक्यूम की तरह, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर धीरे धीरे विसल ऑन करके वो सारी एयर को बाहर निकाल लेंगे और फिर धीरे से ओपन करते हैं, राइट। तो अचानक से वो प्रेशर ना जाए, है ना। वही सेम चीज यहाँ पे, अचानक से आया प्रेशर बैनर को फाड़ सकता है, वहां से निकाल सकता है, राइट। तो इसलिए वो हॉल्स रखे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा बेटा? ऑल ऑफ यू देयर? Can I? बेटा सब वहां पर हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो next question. How will you help your neighbors in the cyclone approach? If the Ma'am, cyclone... can I? Yes, बेटा. Ma'am, I will help my neighbor by shifting their household curtains. Hello, ma'am, can you hear me? Yes, बेटा. Easily I can hear you. Hold household articles like shift to help them to shifting their domestic animals to the safer place. Then second, I will provide them phone number of all emergency service like police, then fire bridges, medical centers, etc. And I will give them safety advice to avoid driving on a road through standing water, not to touch wet switches, etc. Ma'am, Okay. what is fire bridges? Sorry? Ma'am, what is fire bridges? Bridges. हाँ ma'am. Where is it, बेटा? Fire. See. Okay, हाँ. Breeze होगा. मैम अभी मिचर फायर ब्रिजेस बोली. मैंने ब्रिजेस नहीं बोला, नहीं मैंने होता? ब्रिजेस बोला. BRIGADE. Brigade. Fire brigade. Fire brigade.
ओके, फायर ब्रिगेड पता है ना क्या होता है? अगर कोई जगह पे Yes, आग ma'am. लग जाती है, हाँ हमें फायर 101 ब्रिगेड पता है। ठीक है, नहीं 111 ये सारे 101 नहीं नंबर हमें पता होने चाहिए। और Ma'am, can I try? फर्स्ट ma'am can I एड, say एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो बेटा बोलो, आप पहले बोलो। मैम मैम कौन हमें पहले ना बोले उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए राइट, परफेक्ट। मैम can I say Can I say 3 और उनको वेदर और फोरकास्ट के बारे में अलर्ट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास फैसिलिटीज है, अगर आप वो हेल्प कर सकते हो तो वो करना चाहिए, राइट। देन यस एंड बेटा, उनको फूड एंड वाटर देना यस, चाहिए। कंटामिनेटेड नहीं, जहां पर जब तक हो सके, राइट, तब तक हमें वैसा पानी का सोर्स यूज करना है जहां पर कंटामिनेशन वाटर कंटामिनेशन कोई ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो या डेवलप ना कर रही हो जो हमें कोई डिसीज, बॉडी के अंदर डिसीज पैदा करे, राइट। ओके, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम कैन आई से मैम मुझे वो वाले का बोलना था सॉरी, मैम मैं 6 का बोल दूं एक बार हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। by helping in moving to cyclone shelters or other safer place by asking them to take necessary steps and to first take care of their animal vehicle and household goods and by calling emergency services like police fire brigade or hospitals when there is requirement. Correct. Okay. See, for neighbor, we can write down all the points that we have written in case of, or that we have discussed in case of during, after, and before cyclone. All the points. And we also discuss first of we will save ourselves, then we will go to our neighbor. Okay. Yes, definitely. Yes, always, है ना? That is the instruction given in that flight also. पहले खुद की सहायता करो, फिर बाद में किसकी? आपके बट हाँ करनी है, वो कंपल्सरी है, राइट। If they are elders, so we will help them to carry their emergency kit. राइट राइट, अगर कोई एल्डर है तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देना है, उनको जो भी जरूरत है सबसे पहले उनको प्रोवाइड करनी है, बाद में यंगस्टर्स वी कैन डू दैट, है ना। अगर एल्डर ओल्डर कोई पीपल हमारे पास में ओल्ड एज या फिर चिल्ड्रन, राइट, पहली प्रायोरिटी वहीं पर होगी। अगर कोई सिक है तो देन थर्ड प्रायोरिटी होगी वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द what planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? Yes, Tia. Ma'am, we should keep the storage of water, food, and the basic necessities. We should watch television, radios to know what about cyclone, how it is dangerous. Correct. Yes, Vedant. Ma'am, we should take precautions beforehand, such as shift many goods to safer places, keep emergency numbers like police, then Right. fire brigades and Right. RDMIs. Right. Okay, very good. Okay. Ma'am, can I say? When we can, just a second, when we can just plan, when we are having that idea about this, something is going to happen, right? If we are having idea, then yes, definitely we can plan. If we are not having idea, then we are having always one option that we need to keep it ready. First aid box, and second, food packets and water. Okay, there should be one place where you can keep it inside your home. Always first aid box should be ready, food packets and water. Okay, definitely planning में चाहे और कुछ भी हो, बट हमें सबसे ज्यादा सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? चाहे वो फ्लड हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो, खाना और पानी, और जरूरत पड़ती है अगर कोई इंजरी है तो फर्स्ट एड बॉक्स की। तो ये तीनों चीजें सबसे पहली, ठीक है। फिर हाँ, Then we will not able to take another. If we will let to take another, we will be in Correct. in the bad The situation. government should be Ma'am, ready can with the rehabilitation plan.
The cyclones warning issues by the meteorology department through Correct. television, radio, And or what is newspaper meteorology must not be department? ignored. First of Must all, not what is be ignored. meteorology department? मैम जो लोग मतलब मोस्ट ऑफ मैम शायद से तो उसे ही कहते हैं जो लोग मतलब वेदर्स का रिपोर्ट और सब कुछ रख के और सब हम सबको बताते हैं वो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जो उसको स्टडी कर रहे हैं वो कौन है? मेटेरियोलॉजिस्ट. ओके, राइट, वेरी गुड. यस मैम. कंटिन्यू बेटा मितवा. यस मैम. मैम फिर से बोल दूं? मैम बोलो. आधा ही बोला फिर लिंक टूट हाँ गई. हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो. The cyclones warning issued by the meteorological department through television, radio, and newspaper, and it doesn't ignored by them. It is very important. This instruction should be given to all very carefully, and we should not ignore this. If we know and our neighbor doesn't know it, and we have to tell them that this thing is going to happen, or if they are not in they're at their home, and if they are out of station or they're like that. Okay, fine. Okay, Dara, Ma'am, please. Good beta, good try, very good try. Government should also be informed to the people who live in rural areas, because they do most probably they do not have TVs. Right. We have to just provide that information, right? Correct. No, they do not But have right now, we all of us are having those mobile phones. So connectivity is very good right now. Okay, nowadays we are having that very good connectivity. But yes, still there are some remote places where we are not able to reach easily, right? Correct. Tara, yes, beta. Next question, Tara. Which one of the following places is unlikely to be affected by cyclone? Ma'am, Amritsar. Why Amritsar, beta? Ma'am, because Amritsar is far away from the sea. Right. Ma'am, can I see the And proper it is a answer? coastal area. Yes, correct. Very good. Ma'am, Yes. can I see why it is? Okay. Just a second, beta. Mitra, we are going to give the chance to other students also. Rutva. Ma'am, because it is on the coastline of India. Correct. Coastline is first answer. Second requirement, what is it? What is the second requirement, beta, for formation of cyclone? Hot, humid, and tropical region. So this is tropical region. Okay. It is also hot and humid. Okay. All these examples, like if we take example of what? First example, we will take Chennai and Mangalore. Both of them are coastal region. What about Puri? Puri is also where it is situated. Amritsar is somewhere away, far away from that ocean region. Okay, it's near to that mountain range, right? So you can say, or yes, beta. What happened? Yes, Mitra. Okay. मैम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है. Okay, you are writing that in chat, no? Mitwa, one Mitwa is there, right? Okay, Diya, yes, beta. Diya, next question. In winter, the wind flow from the land to ocean. Please explain. Ma'am, yes, ma'am, it is correct, because during winter, the land cools down faster than the ocean, and in ocean, when water is heated, water will rise up. See, here the situation is clearly mentioned. What is the situation? In winter, the winds flow from the land to ocean. अब हमने क्या विंड की पैटर्न क्या देखी थी? दो पैटर्न फिर से मैं याद दिला रही हूँ, पहले एक बार देख लो बेटा, फिर बाद में कोई बीच में बोलेगा, ठीक है? अगर ये इंडिया का मैप है, राइट, ये बेस पार्ट है, ऊपर का भी हम नहीं ले रहे, मतलब समझ लेना, और ये हमारा कोस्टल रीजन है, सी रीजन है, ठीक है, पूरा का पूरा तीनों साइड. तो विंटर में क्या होगा और मॉनसून में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमने देखा था. अगर वो मॉनसून सीजन है तो हवा कहाँ से कहाँ बहती है? कोस्टल से ऊपर की साइड जाने वाली है. इसलिए हमारा मॉनसून जब केरला में पहली बार बारिश होगी, ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पे वो गुजरात में पहुंचती है. उसके बाद पहुंचती है पहले तो मुंबई, और मुंबई के बाद गुजरात में, ठीक है. तो अगर ओशन से हवा आ रही है तो वो क्योंकि यहाँ पे ओशन पूरे समर सीजन में क्या किया है उसने?
इवेपोरेट करके वहां बादल के फॉर्म में कंडेंस हुआ है, ठीक है। ओशन से ही बादल बनते हैं और किसी जगह से नहीं, ठीक है। इसलिए मॉनसून के जो विंड है वो हमेशा कोस्टल रीजन से अंदर ऊपर की साइड उठते हैं हमारे केस पे, ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। और जब विंटर होता है तब उस टाइम पे विंड की डायरेक्शन क्या होती है, वो ऊपर से नीचे आने वाले, ऊपर यानी नॉर्दर्न और नॉर्दर्न हिमालय से वो हवा नीचे की ओर बहती है, क्योंकि वो हिमाचल से पास होके आ रही है, वो हायर एल्टीट्यूड है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है। ये कुछ ऐसा है कि रेफ्रिजरेटर खोलोगे तो डेफिनेटली आपको फ्रीजर डीप फ्रीजर में से ठंडी हवा ही मिलेगी, क्योंकि वो हवा कहाँ से आ रही है, किसी ठंडे रीजन से, ठीक है। तो वो ऊपर से नीचे तरफ आएगी। बट क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है तो वहां पे आपको उतनी ठंडी या उतनी गर्मी कभी फील नहीं होगी, ह्यूमिडिटी फील होगी, राइट। बट बाकी सारी जगह पे वहां पे विंटर होगा, फाइन। अगर आप माइक्रोवेव ओवन को गर्म करने के बाद ओपन करोगे तो अंदर से गर्म हवा ही आएगी, है ना, क्योंकि वो है ही डिवाइसेस के लिए, राइट। तो यहाँ पे विंटर में क्यों लैंड टू ओशन, यानी ये लैंड टू ओशन ही जा रहा है ना, ऊपर कहीं पे कोस्टल रीजन नहीं है, कहीं पे ओशन नहीं है, ठीक है। तो हिमाचल की ऊपर से जो हवा आ रही है पूरे माउंटेन रेंज से, वो कहाँ पे जा रही है, नीचे ओशन तक जा रही है, ठीक है। तो उसके बीच में तो कोई ओशन नहीं है, ठीक है। जब तक वो गुजरात और इसके बॉर्डर पे ना आए तब तक कोई ओशन नहीं है। तो ये लैंड टू ओशन मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशन, तो ये सही है। तो हाँ, विंटर में वो वहीं से वहां ही फ्लो करेगा। ये आपका बेटा लैंड टू ओशन वाला सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं है, ठीक है। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next question, in summer winds flow from the land towards the ocean. अब ये No. करेक्ट, लैंड टुवर्ड्स द ओशन नहीं करेक्ट है। समर में, अच्छा समर में कहाँ से कहाँ जाएंगे, हमने तो मानसून की बात की, और किसकी बात की हमने, Winter की. Winter की. हाँ, तो समर में क्या होगा बेटा, मैम पंजाब से आएगा समर। यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं है। डू आंसर बेटा, सारे के सारे आंसर ऐसे ही नहीं करने। और ये आंसर हमें कौन बताएंगे, वेदांत। ओके, just give me a moment. हाँ बताओ बेटा। चलो समर में क्या होगा बताओ, आगे पास टेक्स्ट बुक है, हाँ या ना, टेक्स्ट बुक है। तो समर में क्या होगा, कहाँ से कहाँ विंड जाएगी, हर्ष? मैम ओशन टू लैंड। यस मैम। टू, अच्छा समर में Ma'am, आप, हाँ दिया बोलो बेटा, दिया। ma'am, wind will come from southern part. southern part to land region. Yes, ma'am. Why? Ma'am, Why? because it will not evaporate. अच्छा, अब हमें ब्रीज वाला याद करना है। ब्रीज में हमने क्या स्टडी किया, दिन के टाइम पे जब गर्मी बढ़ेगी उस टाइम पे लैंड जल्दी से गर्म होगी, बट लैंड तो वहां पर से पानी इवेपोरेट नहीं करेगी। हाँ, अगर चांसेस है, अगर वहां पर ट्रीज ज्यादा है तो, ठीक है, तो चांसेस है, फाइन। बट यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन होगा बट कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, कम है। ओशन के ऊपर अगर सेम चीज होगी तो वो हवा ऊपर जाएगी, वो मेरे ऊपर जाएगी, वो कंडेंस होगी, और जब एक
प्रॉपर प्रेशर बनेगा तब वहां पे पहली बार मॉनसून सीजन स्टार्ट होगी। ओके, परफेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोक बाल सही है बेटा, है ना, बाल बिल्कुल सही है, आप जरा टेक्स्ट बुक पे फोकस करो। नेक्स्ट इज a cyclone is formed by a very high pressure system with a very high speed winds revolving around it. Yes, Mitwa. ट्रू मैम, ट्रू मैम, क्योंकि जब यस मैम जब साइक्लोन आए A cyclone is formed by a very high pressure system. साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि वेरी हाई प्रेशर सिस्टम होनी चाहिए विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। हाई स्पीड विंड तो सही है, क्योंकि उसके बिना हमारा साइक्लोन या टोर्नेडो नहीं बनेगा। बट व्हाट अबाउट हाई प्रेशर? साइक्लोन है मतलब याद रखना कि कौन सा प्रेशर होगा वहां पे, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? बेटा चेक करो, साइक्लोन वाला पूरा पोर्शन ओपन करो। मैम हाँ। लो प्रेशर। जो भी आप आंसर बता रहे हो, मुझे उसके लिए अपना एक जस्टिफिकेशन, एक रीजन बताओ। हाँ मैम एक मिनट। बेटा म्यूट कर दो, म्यूट करो अपने आप को। यहाँ पे स्टॉर्म्स और साइक्लोन के स्टेप बताए, ये देखो आपके एग्जैक्टली ऊपर ही एक्सरसाइज के। यहाँ पे देखो कौन सी चीज बताई, ये देखो वार्म एयर राइजेस एंड क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया, then is going to convert into cool air, will convert it into a low pressure area and warm air will rises which will cause what? बेटा साइक्लोन के अंदर पहले साइक्लोन आई होती है, बीच में कोई हाई स्पीड विंड्स मूव नहीं कर रहे, तो वहां पे कैसा प्रेशर होगा? लो। देखो हमने क्या पढ़ा था, हाई स्पीड विंड अगर मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी से कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, याद है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी याद है बेटा? हाई स्पीड विंड जैसे वाटर वाला देखा था, अगर मैं यहाँ पे ब्लो कर रही हूँ एयर, तो इतनी सी जगह में जब मैं जोर से वो ब्लो कर रही हूँ एयर, उस जगह पे क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। और अंदर प्रेशर कैसा बना हुआ है, क्योंकि वहां पे हाई स्पीड विंड नहीं मूव हो रही है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए वहां हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर, इसलिए पेपर बाहर की तरफ आता है, हाई टू लो। तो यहाँ पे देखो एकदम क्लियरली मेंशन है कि लो प्रेशर एरिया होता है। हाँ, हाई स्पीड विंड वहां पे घूम रही है, पर प्रेशर का कंडक्शन कैसे होगा? लो प्रेशर। बीच में आई है, वहां पे क्या होगा? साइक्लोन के आई में क्या हो रहा है? कोई एक्टिविटी नहीं है, वो एकदम काम रीजन है। ठीक है, द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। कोस्टल region of India, it's not vulnerable to cyclones. अब ये फाइंड करके बेटा मुझे देना है, ऐसा है? हेलो, ये आंसर भी मुझे आपको यहाँ पे मार्क करवाना है, ऐसा है बेटा? साइक्लोन है इंडिया में, पहले तो ये बताओ मुझे। इक्वेटर के नजदीक में देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन्स फॉर्म। साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह पे ही होते नहीं है, बट हाँ कोस्टल रीजन पे होना चाहिए, है ना? तो इंडिया में कौन सी जगह वहां पे ज्यादा प्रोन है? पहले तो प्रोन है या नहीं? प्रोन यानी, प्रोन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब क्या होता है? साइक्लोन प्रोन, वोल्केनो प्रोन वर्ड से ज्यादा अर्थक्वेक। प्रोन का मतलब होता है अगर किसी चीज के रिलेटेड, वो सपोज समझ लो कि पेरिस जो पूरा का पूरा पानी के ऊपर है ना, तो वहां पे फ्लड के चांसेस ज्यादा है, फ्लड प्रोन एरिया। प्रोन यानी वहां पे चांसेस है उस जगह पे, ठीक है? वैसे साइक्लोन प्रोन एरियाज तो कौन कौन से आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कौन से एरिया साइक्लोन प्रोन है? मैम इंडिया में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, देन और इंडियन ओशियन और इंडिया साउथ इंडिया की बॉर्डर। अरेबियन सी। हमारे पास बेटा पहले तो कोस्टल रीजन है, यस है। तीनों जो रिक्वायरमेंट है हमारी, कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी?
कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन हो तो वहां पे साइक्लोन फॉर्म हो सकता है, और अगर वहां पे हाई स्पीड विंड हो तो साइक्लोन, डेफिनेटली साइक्लोन हमें ऑलरेडी फेस किया ही है गुजरात के कोस्टल रीजन में। हम टॉर्नेडो नहीं बोल रहे, हम साइक्लोन बोल रहे हैं। ठीक है, पता चल गया अभी? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ये विंड स्पीड यहाँ पे दिख रही है बेटा जो हमने डिस्कस की थी। देखो Yes, मॉनसून ma'am. की विंड और विंटर वाले विंड जो ऊपर से नीचे जाएंगे, और ये कहां से कहां जाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी ओशन से लैंड की ओर। Uneven heating of a land, especially the Rajasthan desert, generate the monsoon winds from the southwest direction. Southwest यानी कौन सा होगा? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट। हमारे पास एक डेजर्ट भी है ना, हमारे पास हर तरीके के रीजन है, स्नोफॉल भी होता है, हमारे पास डेजर्ट भी है, कोस्टल रीजन भी है, कंप्लीटली प्लेन, अमेजोन का जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है वैसे फॉरेस्ट भी बहुत सारी जगह पे है। तो इसलिए इंडिया वैसे भी बहुत ही ज्यादा वेराइटीज में हमारे पास, ना ही ज्योग्राफिकली, कल्चर वाइज, सारी चीजों में हमें वैरायटी मिलेगी। सीजन में भी तीनों सीजन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर समर के लिए पूछा जाए तो कौन से? साउथ वेस्ट, जैसे दिया ने बताया। राइट, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. अब एक 5 मिनट ले लो आराम से, सारे टॉपिक में जो बोल्ड लेटर्स है वो देखो, पढ़ो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे बोलो। 5 मिनट्स लो, 5 मिनट्स के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, और आप मुझे आंसर बताओगे। अगर कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है आपकी तरफ से तो हम आज के जो क्वेश्चन है या जो आपको नहीं आता वो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, मैम 2 बार लिखेंगे यानी पनिशमेंट में कह रहे हो? किसमें? मैम 2 बार लिखेंगे यानी पनिशमेंट में कह रहे हो? पनिशमेंट में ही बेटा, हाँ। ओके। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, आराम से देखो, क्योंकि जनरली क्या होगा, नहीं मैम कोई डाउट नहीं है ना। Ma'am, I have one doubt. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, what is typhoon? टाइफून, टाइफून इज अनदर वर्ड फॉर दैट। टाइफून और दूसरा वर्ड क्या था बेटा, याद करो। Hurricane. सॉरी, हरिकेन। हरिकेन। हरिकेन, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए है? मैम स्टॉर्म के लिए। स्टॉर्म के लिए? साइक्लोन के लिए मैम, मैम नहीं साइक्लोन साइक्लोन के लिए। साइक्लोन के लिए है। मैम Cyclone. इंडिया में कौन हरिकेन जापान में? आते हैं। यस मैम, इंडिया में हरिकेन इंडिया में हरिकेन आते हैं। ये सिर्फ नाम है अलग अलग, ठीक है, जो हर जगह पे बोले जाते हैं। फाइन। मैम Okay. टाइफून जापान में बोला जाता है, हरिकेन नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका नॉर्थ के अमेरिका। कॉन्टिनेंट में बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में। ओके, चलो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।
अच्छा, चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है बेटा? चारों प्रॉपर्टी कौन मुझे बताएगा टर्न बाय टर्न? एक प्रॉपर्टी बताओ कि उसमें क्या समझ में आया है। चलो एक्सप्लेन करो, मैं जिसको बताऊंगी वो बताएगा मुझे, ठीक है? मैम किसकी प्रॉपर्टी, कैन यू रिपीट? एयर की प्रॉपर्टी, चार्ज हमने स्टडी की है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है, ठीक है? हाँ अंश, क्या हो बेटा? ठीक है, एग्जॉस्ट प्रेशर, सॉरी, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, ओके। फिर एक मिनट, मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा। खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, मुझे बाकी के प्रॉपर्टीज बताओ। खुशी, कोई एक प्रॉपर्टी बताओ इसके अलावा। मैम सब लोग लेफ्ट हो रहे हैं। नीव, आप बताओ बेटा मुझे, कोई एक प्रॉपर्टी बताओ। नीव, यस मैम। यस बेटा, कोई भी एक प्रॉपर्टी बताओ मुझे एयर की जो हमने स्टडी की है। चार, सॉरी